So hi Alok, first of all, welcome to Mardarshan and especially in Abhiyan batch. Here we are interviewing each and every students and aspirants who are preparing for their PSU's mock interviews or PSU's interviews. Okay, so please Alok, we would like that please introduce yourself. Good evening, sir. My name is Alok Misra. I am from Uttar Pradesh, Jaunpur. I have done my primary education from Jaunpur, and then I have done my high school and graduation from Prayagraj, Uttar Pradesh. I have completed my graduation in civil engineering from NIT Patna in 2020. Sir, currently I am working in Tata Consulting Engineers company as civil engineer in the Smart City project, Satna. Thank you. When did you completed your BTech from NIT Patna? Sir, in 2020. In 2020, okay. Later on, what you have did? Yes, I am working as a civil engineer in Tata Consulting Engineers TCS. Private Limited, TCE, Tata Consulting Engineers Limited. Okay. So what is the work profile there? As is, I am working in Smart City project at Satna, MP. I am working as a civil engineer. My main work is related to the tender process and BOQ estimation, etc. So, it seems you are working really nice right now, and that too, in Tata. Tata has a big name. They have good perks, compensation, and all that. So, despite all that, why do you want to join BHEL? I want to join PSL for job satisfaction and better career growth, as as a PSU will provide me better opportunities for career growth as Do compared to you any really other think place. a government organization provides you a better career growth than a private one? Uh, yes, sir. I am working to get a government job. My main focus is that by side I am working private. So, your focus is a government job, huh? तो Yes. आप तो फिर यूपीएससी करिए, यूपीएससी करना चाहिए आपने, सिविल सर्विसेज करना चाहिए ना आपने, अगर आपका मेन फोकस गवर्नमेंट जॉब का है तो, है ना? तो Sir, I mean government civil engineering job. तो CPWBD में जाना चाहिए. डब्ल्यूडी भी है, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, तो क्यों भेल? क्यों भेल? Sorry, sir. कैरी ऑन. Sorry, sir. Sir, I mean that I wanted to join a PSU because in PSU there is uh, uh, no problem like politics, etc. And I will get full opportunity. Who said that in So, PSC politics happened and in government job politics happened? Who said that? No, it is not. It is not like that. In pure government organization, we have to deal with the local authorities like mayor and etc. But in PSUs, we will be working on our own. So like, that's not true. I mean, I don't know where did you get your facts from. From where have you listened, or okay, like what are these myths? कहाँ से सुन के आए हो आप ये okay. अफवाह? No. I will prepare for this answer, and we can proceed further. What? Okay, fine. So you just mentioned you Yes, want sir. to join government job. So why BHAL? Sir, PHL will provide me better career opportunities and growth. That okay, fine. Again, why BHAL? I mean, better career opportunities and growth. This will be provided by, I don't know, maybe HPCL, BPCL, IOCL, everyone else. So why BHAL? I have been asking this question since last 5 minutes. Sorry, sir. Okay, again, try again. I Why will prepare BHAL? this answer I will prepare this answer in a better way. Okay, fine. Yes, yes, yes. Okay.
नहीं मतलब Yes. ऐसा इसमें प्रिपेयर नहीं करना, आपको सोचना है इसमें बारे में। अगर आप देखो, पहली बात तो आप नर्वस ना हो रही है, ठीक है, आप काफी नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। थोड़ा अगर पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, Yes. बट बिल्कुल काम रहिए, Okay, sir. है ना, बिल्कुल काम Yes. रहिए। बहुत डर रहे हो आप इंटरव्यू देते टाइम, ओके, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, ओके, नो प्रॉब्लम, Yes. ठीक है। Okay. So, what is your job in TCE? Sir, my job is mainly related to the official work. Like I I prepare the tenders and do the estimations for civil engineering works. That's good actually. In BHEL, we need people like you. We need people who are, experienced in tender and all these things. Mainly the Yes. cost estimation and those kind of work. That's good. So, I mean, can you tell me some incident where, you hit a roadblock and you had to, use your mind more than usually you do, and, that's how you, went through that roadblock. Can you Yes, tell sir. me some Sir, incident like that? yes, sir. Sir, remember. Sir, sir, can I speak in Hindi? यस यस यू कैन। No, Yes, yes, you sir. can, but see if you can have, in English. ओके सर। सर मेक सर। सर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है WTP का। सर उसमें 1840 और 9 MLD का WTP था। तो 9 MLD का WTP डिमोलिश करने के लिए प्लान था। तो सर हम लोग वहाँ पे गए, तो मैंने वहाँ पे देखा कि 9 MLD का जो WTP है उसका वेल्डिंग अभी वर्किंग कंडीशन में है। तो उसको डिमोलिश करने के बजाय उसको हमने एक स्टोर की तरह कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा यूज किया था माइंड। तो इसको मैं Yes. बोल सकता हूँ। यस चलो, ये बहुत बढ़िया बात है। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, आलोक जी? सर। सर मैं अपने एजुकेशन के दौरान अलग अलग जगह पर रहा हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, और करंटली मैं सतना में रह रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपना स्ट्रेंथ अपनी एडाप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को समझता हूँ। और इसके अलावा सर वीकनेस में मैं जो अभी देख पा रहा हूँ सर, इंग्लिश स्पीकिंग में मैं अपने आप को वीक समझता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि अपने इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करूँ। सो लेट्स से आप भेल ज्वाइन करते हो एंड तुम्हें लेट्स से किसी ओवरसीज ऑपरेशन में भेजा जाता है, एंड इन दैट केस यू हैव टू हैव कन्वर्सेशन ओनली इन इंग्लिश, तो व्हाट विल यू डू इन Yes, दैट sir. केस? Sir, I am working on my English, but with the time, I am sure that I will succeed at it, and we will be fluent in speaking English. Yeah, great, great. So I think you are native from UP, right? Yes, sir. Yes, so you were in UP, went to Patna, and then now in Madhya Pradesh. So, like you have been in very, Diversity. north zone kind of. So what if, like Yes, BHEL has locations all over the country, including, north, very south, northeast, and all those places. So, like, yes, what if you are, like put into those kind of location? Will you be comfortable working there? yes, sir. I will be comfortable there, sir. Uh, as I have lived at different places, I can adopt their culture and traditions. Living it is. Yeah, that's great. Yes, yes, sir. Yes, sir. कोई ऐसी सिचुएशन बताइए जहाँ पे आपको बेसिकली फेस करना पड़ा डिफिकल्टीज, या फिर आपको कोई प्रॉब्लमेटिक ऐसा कहीं पे कोई प्रॉब्लम में आप फंस गए, ठीक है, सॉरी। टेल मी दैट सिचुएशन वेयर यू हैव बीन फेस्ड इनटू द प्रॉब्लम्स एंड हाउ यू हैव डील्ड विद दैट। Yes, sir. A very worst situation. टेल मी, हुई कभी ऐसी घटना? नहीं हुई? No, sir. नहीं हुई, कभी घटना नहीं हुई। अच्छा चलिए बताइए, तो सबसे Sir, I खुशी वाला मौका बताइए आपके कभी सबसे खुशी वाला मौका बताइए आपके लाइफ में, व्हेन यू वर sir, वेरी। yes.
सर मैं जब जेई की तैयारी कर रहा था तो उसके बाद मुझे जब कॉलेज मिला एनआईटी पटना तो वो मेरे लिए खुशी का माहौल था। उसके अतिरिक्त आपने बीटेक में क्या किया? बीटेक में बीटेक का थोड़ा सा बताइए आपका। बीटेक में क्या किया आपने? कौन सा करिकुलम किया? कोई 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 कंपटीशन अटेंड किया, नहीं किया? लीडरशिप कोई स्किल्स है आपके अंदर, नहीं है? कुछ बताइए उसके बारे में, उसके ऊपर प्रकाश यस डालिए। सर। सर सर बीटेक में मैं वहाँ वहाँ पे अंडर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिया करता था सर। हमारे सर टीचर्स की टीम थी जो कि डेली 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 स्टूडेंट्स को डेली एजुकेशन देती थी सर। उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चे पढ़ने आते थे और हम लोग उनको अलग अलग बैच बना के एजुकेशन प्रोवाइड करते ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बताइए उसमें से आपने क्या सीखा कुछ। कैन यू प्लीज टेल अस सम टीचिंग्स दैट यू गेट फ्रॉम देयर। थे। यस सर। सर उसमें मैंने सीखा कि सर अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। लाइक छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। और इसके अलावा मैं वहाँ पे टीचर्स की टीम को मेंटरिंग करता था कि कौन सा सिलेबस किसको पढ़ाना है। एंड इसके अलावा भी कई सारे वर्क होते थे, टीम मैनेजमेंट वर्क इत्यादि। चलो, बहुत बढ़िया बात है। यस सर। तो आलोक जी अभी फिर से उसी क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई बीएचईएल। यस सर। सर आई डोंट हैव लाइक आंसर्स। चलिए, नो प्रॉब्लम। मुझे बताइए जौनपुर, व्हाट इज जौनपुर फेमस फॉर? सर जौनपुर इज फेमस फॉर परफ्यूम। यस सर। ओनली जौनपुर इज परफ्यूम्स? फेमस फॉर परफ्यूम। परफ्यूम एंड इट इज ए सर हिस्टोरिकल सिटी। सर जौनपुर का नाम जौना खान के नाम पर रखा गया है सर, जो कि जलालुद्दीन के भाई थे, उनके नाम पर। और वहाँ पे कई सारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं लाइक जामा जामा मस्जिद और साहिब ब्रिज और भी कई सारे ऐतिहासिक चीजें हैं सर। ओके। वैसे तो हमारे, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हमारे घर के पास में एक जौनपुर की मिठाई करके फेमस शॉप है। तो आई वॉज यस एक्सपेक्टिंग दैट जौनपुर इज फेमस फॉर स्वीट्स एज वेल एंड मिष्ठान भंडार एज वेल। नो नो सर। इज इट? ऐसा नहीं सर। मेनली तो सर यहाँ का परफ्यूम फेमस है। इसके अलावा सर यहाँ यहाँ पे बीड़ी भी बनाई जाती है, जो लोग बीड़ी पीते हैं तो उसके लिए भी फेमस है। ओके, सो बेसिकली यू यस सर। कैन यू चलो, दैट टोबैको। ओके, नो नो इश्यूज। चलिए, यस मान लीजिए आप अपने कंफर्ट जोन में हो अभी। ओके, बराबर है। अब अपार्ट यस फ्रॉम दिस कंफर्ट जोन, इफ यू हैव बीन गिवन अ चांस टू लर्न न्यू स्किल्स, सो व्हिच स्किल्स you will be acquiring? And सर। सर आई विल बी एक्वायरिंग द मैनेजमेंट स्किल along with the technical work. okay, okay, so we will conclude the interview. So please review. I have to multiple reviews, but multiple feedbacks for him. Please you start, then I will be ending. okay. So number one, you are ill prepared. Okay, you don't know why BHEL. All you are saying is growth and career prospect. I mean, that could be a correct answer, but there should be some level of detailing at least. Okay. Yes. So, okay, fine. It was your first instant. Maybe this is the reason you are taking the mock, you are giving the mock interviews. That's the point. Yes. But like whenever you come here next time, you should have a good reason to why BHEL. The question was not why PSUs. Question was why BHEL. You should have a very solid and Yes. very concrete answer to why BHEL. Yes, Okay. sir. Second, ऐसा पूछा जा रहा है इंटरव्यूज में, कल भी जो इंटरव्यूज है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन। ये पूछा जाएगा ही ना। दिस इज वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन। तुम प्राइवेट जाओ गवर्नमेंट जाओ, मेरे प्राइवेट इंटरव्यू में 15-20 मिनट यही चल रहा था, वाई एन सिक्स वाई एन सिक्स। तो दिस इज वेरी नॉर्मल। तुम कहीं पे भी जाओ तुम्हें पूछने ही वाले हैं। उसके बाद में आप बोल रहे गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब तो बहुत सारी है ना? तो इस वो सर मैं कल पीएससी एक बोलना बच्चे चाह रहा को था लेकिन सर कल एक गवर्नमेंट बोल बच्चे दिया। को सुनिए, बता दो, कल एक बच्चे को यही पूछ लिया, कल की बात बता रहा हूँ, कल का ही रिसेंट, कल पहला इंटरव्यू था कि आप यूपीएससी कर लीजिए ना, यूपीएससी नहीं करना है आपको। उसने भी सेम ऐसा ही फंस गया, यूपीएससी कर लीजिए बोले डायरेक्ट जाकर।
आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है ना, भेल में तो नहीं आना, आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो जाइए यूपीएससी करिए बोले। इसका प्रॉपर आंसर क्या तो होना मतलब चाहिए सर? टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग में इंटरेक्शन में तुम फंस गए थे, बस ठीक गए। है, आई मीन वी जस्ट इग्नोर्ड इट एंड स्टिल कैरी आउट योर और इंटरव्यू, बट इन यूजुअल सिनेरियो उस काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती। ऐसा है पता है सर, एंड यू अब मैं आपको बताऊं, हमें ना, जैसे अभी कुछ एक वीडियो डाला था मैंने, उसमें हम लोगों ने, अब वो वीडियो कट हो गया था बीच से, तो एक बच्चा आके, मैंने ग्रुप पे डाला था रजनीश करके, तो वो उसने क्या कहा कि आप प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहे हो करके। अब उन्हें मालूम तो था नहीं, है ना, कि हम फीडबैक कैसे देते हैं, वो वीडियो कट हो चुका था। तो कर करना। दे स्टार्टेड ओके, तो चलिए इनको प्रॉपर फीडबैक दे देते ईच एंड एवरीथिंग, है ना, वरना फिर अपने ऊपर में सवाल उठते हैं जो कि हम करेक्ट। देते नहीं है उठाने के लिए। तो आलोक मिश्रा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2020 के यस पास आउट है, आपके आप मतलब आपने, आपके उसमें एक प्रॉपर डिटेलिंग वाले आंसर एक भी नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हो, और बिना प्रिपेयर्ड करके आप आज गए। जैसे कल वो नदीम था, नदीम आया ऐसी, बस एक दो शब्द के आंसर दे दिए, ये एक दो हाँ, शब्द मीन्स के। एक्चुअली मीन्स आई विल एक्चुअली बी सर ऑनेस्ट, मैं टेक्निकल तुम्हारे क्वेश्चंस आंसर तुम्हारे आंसर इतने क्लोज्ड थे, आंसर इतने क्लोज थे कि आगे कैसे जाए हमको क्वेश्चन आ रहा था। एक दो तुम्हें शब्द पूछा में वाई कभी सर आंसर नहीं देना, ठीक है। एक सर आंसर मैं जो होता है, जाकर आप श्रेयांशु का वीडियो देखिएगा, श्रेयांशु का जो वीडियो है ना उसको देखिएगा। सी हिज आंसर, हाउ ही हैज आंसर्ड, ही इज आल्सो फ्रॉम बिहार यस इटसेल्फ। उसके आंसर देखिएगा, वो 100% अश्योर्ड है कि वो बंदा सिलेक्ट होगा करके। मैं उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकता हूँ कि वो सिलेक्ट होगा, अगर उसके भेल में अगर नंबर भी अच्छे हैं तो, एग्जाम में, सीबीटी एग्जाम में। आपको अब तैयारी कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये जो बेसिक थिंग्स है इसी के ऊपर में पहले वर्क करना है। जो एचआर क्वेश्चंस है इनका आंसर आप निकालिए, चैट जीपीटी का यूज करिए। नहीं आता है तो काफी सारे रिसोर्सेस आपके अवेलेबल है, एप्लीकेशन में भी सर है। हिंदी में अभियान आंसर बैच देना कि आप, इंग्लिश में आंसर देना? हाँ, हिंदी में आंसर देना या इंग्लिश में आंसर देखो देना है? अब आपने वहां पे क्या बोला कि सर मैं इंग्लिश से हिंदी में आ जाऊँ क्या, वहां से आपका पता चल जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो रहा है करके। ओके, सर अगर इंग्लिश आप में उतना इंग्लिश, प्रैक्टिस नहीं। हाँ तो ठीक है आप हिंदी में बोलिए, बट शुरुआत ही हिंदी से करिए, फिर इंग्लिश में जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। स्टार्टिंग ही आप ठीक है हिंदी सर। से कर सकते थे, जैसे कि अभी आयुष देखो यार एक, पंकज हाँ, करके, एक बात। हम्म। पंकज जो था उसे इंग्लिश नहीं आती थी, वो पूरा इंटरव्यू उसने हिंदी में लिया स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की। पंकज हाँ सर यही गलती बहुत हुई अच्छे से, बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया है उसने, हाँ। बट उसका गेट का रैंक देख, सर काफी कम था। तुम्हारे यस सर प्लीज गो जब ऑन। तक जब तक तुमने बताया नहीं तब तक हमें पता ही नहीं था तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग में तो अच्छा बोल रहे थे, ओके कोई सर। ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और तुम और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तुम 3 साढ़े 3 साल से फ्लुएंसी नहीं वर्किंग सर। हो, लाइक यस that is यस okay, सर। like that is all right. We don't have that level of fluency, but point being कि you are able to express. अगर तुम बताते नहीं यस कि सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कैन आई शिफ्ट टू हिंदी, हमें पता ही नहीं चलता ऑनेस्टली। यस एक और बात, तुम 3 साढ़े 3 साल से वर्किंग है, वेयर इज योर कॉन्फिडेंस? यस आई मीन क्या है, कुछ तो दिखाओ। सर। लगना स्टिल चाहिए ही कि इज नहीं सच नर्वस में सर, तुम्हें जॉब चाहिए है। स्टिल ही इज नर्वस। यस सर। तुम अभी भी नर्वस हो। अब हाँ, एक नहीं बात नहीं है, सही बात नहीं सर। स्टार्टिंग में यस तुम्हारे आंसर्स गड़बड़ गए, देन मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चन चालू किए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड ऑल। उसके बाद से तुम्हारा डिलीवरी अच्छा हो गया था, ऑनेस्टली। मीन्स सर ये वो तुम मैं में एक इंग्लिश से अच्छी हिंदी में आया क्वालिटी था है। तो। यस तो सी क्या है, यस इंग्लिश हिंदी डजेंट मैटर, बट एवरीबडी नोज इंग्लिश इज बेटर, ठीक है। यस हाँ, तो सी दैट्स योर डिसीजन, हिंदी में देने से भी कोई ऐसे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऐसा कुछ नहीं है। बट डेफिनेटली कुछ तो उसमें इनपुट होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थोड़ा यस कॉन्फिडेंस दिखाओ, नहीं हो तो वो फेक करो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं यस है। हाँ, और तुम बट 3 साढ़े 3 साल से वर्किंग हो यार, कितने सारे मीटिंग्स किए, कितने सारे इंटरव्यूज किए, कितने सारे वीडियो कॉल किए तुमने, दिखाओ थोड़ा। लगना चाहिए कि नहीं, थोड़ा वर्किंग वाले हो करके, एनआईटी से हो करके। सर एक्चुअली जो जो क्वेश्चंस थे सर, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा था। तो अभी एचआर के लिए मैंने प्रिपेयर करना शुरू ही किया था। इतना मैंने प्रिपेयर नहीं किया एचआर के लिए, तो अभी मैं देखो बात उसका क्या होती है वेबसाइट ना। चेक कर रहा हूँ, हम्म प्रिपेयर कर रहा हूँ।
आंसर्स फ्रेम बात कर रहा क्या हूँ होती सर है अभी ना, इस फेज में। बात बात ये होती है कि सब लोग, तुम लोग टेक्निकल ऑलरेडी क्लियर करके आए हो। यूजुअली लोगों यस का टेक्निकल अच्छा होता ही है, देर इज नथिंग न्यू इन दैट। ठीक है, मतलब होता है मेजोरिटी का, जहां तक हम लोगों ने इंटरव्यूज लिए है। नहीं सर, टेक्निकल यूजुअली अच्छा और होता सर है सबका। टेक्निकल इतना वास्ट है, पहली बात तो टेक्निकल इतना वास्ट है, हाँ हाँ। क्वेश्चन तो कैसे ही पूछा जाएगा। अगर फंस गया, अगर कैंडिडेट फंस गया इंटरव्यू में तो फंस गया, उसका दिन अच्छा है तो निकल जाएगा, बराबर। और यही चीज होती है, मेन तो यही फंस रहे हैं ना आप तो स्टार्टिंग में ही फंस गए। सर चलो। सर पहला इंटरव्यू था, मेन बात है कि सर आपका पहला इंटरव्यू था। टेक्निकल उन लोगों यस के सर। लिए था जिनका सेकंड इंटरव्यू है आज, आपका पहला ही तो अच्छा था। सर। यस सर। सर जैसे किसी क्वेश्चन में अगर फंस जा रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करें वहां पे इंटरव्यू? देखो, हम एचआर आगे बढ़ क्वेश्चन में जाएं या तुम फंसने ही नहीं चाहिए। एचआर क्वेश्चन में फंसने ही नहीं चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी एन आंसर टू एन एचआर क्वेश्चन। मान लीजिए मेरे आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो हमको वहीं रुक जाना चाहिए या क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? तो देखो, सेटिस्फाई थोड़ा जैसे उनके मेरे पास आंसर एक्सप्रेशन नहीं था। वो जैसे गलत मेरे पास बात है। आंसर यू नहीं आर था भाई सेइंग कि फिर। मैं नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करके आऊंगा भाई, मतलब मैं कैसे सिलेक्ट कर लूं तुमको? तुम नहीं नहीं, जॉब वो मैं अप्लाई आपसे करने बोला आए था, हो। वहां पे मैंने ऐसा नहीं बोलूंगा, वहां पे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। वहां पे तो ऐसा कुछ नहीं नहीं, बोलना सोचो, है। देखो कि बात ये होती है, हाँ। एचआर क्वेश्चन होते ही वैसे है, तुम अटक नहीं सकते, तुम्हें आंसर देना ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा। हाँ, और तुम्हें ओके। तब तक ट्राई करना होता है जब हम्म। तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वरना वो उनका जॉब है, फिर वो क्वेश्चन चेंज करेंगे। और तुम्हारे आंसर्स यस। बहुत शॉर्ट थे, 2 वर्ड 3 वर्ड, और मतलब वो बहुत क्लोज आंसर थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर था आगे क्या पूछूं मैं। सर सर मैं सोच रहा था कि यह जैसे कि लंबा इंटरव्यू हो रहा है तो इसमें जिस फील्ड में मैं उतना कॉन्फिडेंस नहीं हूँ तो उसको शॉर्ट में आंसर दे दूं ताकि आगे बढ़ जाए वो टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए। देखो इंटरव्यू ऐसा है, इस जब आप इंटरव्यू दे रहे हो अ, तो इंटरव्यू का मैं हर सेशन में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, शायद आपने अटेंड करना चाहिए था। लिंक तो सभी को मिल जाती है, हम्म, तो पे डाल देता हूँ मैं, ताकि आए स्टूडेंट सीखे तो सही कम से कम, है ना। ठीक है, हम लोग ले रहे पेड तो के सर पेड इंटरव्यूज ले रहे हैं, बट आप लोग सीख तो सकते हो ना। जरूरी है क्या कि आपको आपके इंटरव्यू से आप खुद सीखोगे? नहीं, आपको दूसरे के इंटरव्यू सीखना पड़ता है। श्रेयांशु सर दूसरों के कंटिन्यूस वीडियोस देख रहा है, वो कंटिन्यूस वीडियो देख रहा है, हमेशा देख रहा स्टार्टिंग से हमारे साथ कनेक्टेड है, एंड आज उसका देखिए कितना गजब लेवल हो चुका है। उसके बाद में आप ना आए, इंटरव्यू को ऐसा रखना पड़ता है, जब जब आप किसी आंसर को आप डिलीवर कर रहे हो, तो आप ना इंटरव्यूअर को मजबूर करो कि वो हमसे वो क्वेश्चन पूछे। बट आप जो पहला आंसर दे रहे हो, आपके पास में नेक्स्ट ऐसा आंसर दीजिए कि इंटरव्यूअर दूसरा जो क्वेश्चन पूछे वो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि चेस की बात करें हम लोग, हम्म। चेस में हम लोग जब चाल चलते हैं, तो चेस में कैसा चलते हैं, हमें नेक्स्ट चाल पता होती है हमारी कि हमें कौन सी खेलनी है, हमें कौन सी खेलनी है वो चाल, है ना। तो इंटरव्यू भी वही चीज है, आपको इंटरव्यूअर को खिलाना है अपनी और अपने तरीके से खिलाना है, समझे। कि यस। मैं ऐसा आंसर दूं कि इंटरव्यूअर मुझसे वही आंसर पूछे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपने बोला सर माय बीटेक प्रोजेक्ट वाज दिस एंड आई हैव वर्क एक्सपीरियंस इन टीसीई कंपनी, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग कंपनी। अब इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा, वो जैसे हमने पूछा कि व्हाट वर्क प्रोफाइल और व्हाट यू आर डूइंग इन टीसीई, तो यू मस्ट बी हैविंग द आंसर ऑफ दैट आंसर। फिर आप बोलोगे सर आई एम अ सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई डू बेसिकली कंसल्टिंग जॉब एंड माय वर्क इज सच 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 सो एंड सो। ओके, फिर ये सो एंड सो का भी आपके पास में आंसर आना चाहिए। सपोज आप बोलोगे सर माय वर्क इज कंसल्टिंग, आई बेसिकली डू साइट सीइंग एंड बेसिकली बिल्डिंग रोड्स और समथिंग एल्स। ओके, फिर यस। इंटरव्यूअर आपसे चलो पूछेगा कि व्हाट यू डू इन दैट थिंग। चलो आलोक, देखो ओवरऑल मैं बताऊंगा, आपके पास आंसर्स है, बट यू हैव टू बी लिटिल मोर एक्सप्रेसिव। थोड़ा उसकी लेंथ यस। बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना। तुम्हारे पास यस। टैग अच्छा है, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, तो यू हैव दैट प्लस एज ओवर अदर्स। ठीक है, यस। तो वो एक अच्छी बात यस। होती है, मतलब इट्स नॉट ए नेगेटिव पॉइंट, सर बट होना एक पॉजिटिव पॉइंट है। सर सारे क्वेश्चंस का आंसर करना जरूरी है क्या, कि अगर कोई क्वेश्चन डक करके आगे बढ़ रहे हैं तो दिक्कत है? यार मतलब से यू योरसेल्फ आर एक्सपीरियंस्ड यार, तुमने प्लेसमेंट वगैरह की प्रिपरेशन की है एनआईटी पटना में, राइट? यस।
yes. Yeah, so based on that, try to be a little bit, for example, HR question में अगर तुमको पूछा है strength and weakness, can you duck that question? नहीं, उसको डक नहीं कर सकते सर। जैसे कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अगर आंसर देने में, या आंसर श्योर नहीं है, तो हम उसको सॉरी बोल के आगे बढ़ सकते हैं, या उसको ब्लफ नहीं करना चाहते, अगर आता है तो देते, नहीं तो सीधा आगे बढ़। तुम ब्लफ करो, कुछ भी करो, आंसर देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, HR में बोल रहा हूँ मैं। ठीक अच्छा है? चार। हाँ, अब तुम ठीक बोल है। रहे हो मेरे साथ दौड़ना होता नहीं है, वो तुम्हें दौड़ने के लिए बोलेगा नहीं, डोंट वरी, ठीक है? हम्म। हम्म। हाँ, तो HR में तुम्हें आंसर करना ही है। यूजुअली HR क्वेश्चन ऐसे होते नहीं है कि तुम्हें आंसर आएगा नहीं। दैट्स द हाँ पॉइंट ऑफ HR क्वेश्चंस कि तुम्हारे बारे में पता चले। अगर तुम स्ट्रेंथ और वीकनेस बता नहीं पा रहे हो तो लाइक सर, क्या हुआ एक उसका क्वेश्चन और है मतलब? सर, जैसे कि सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि जैसे वाई भेल, तो एक सिविल इंजीनियर के लिए इसका अच्छा आंसर क्या हो सकता है? जैसे कि भेल तो इलेक्ट्रिकल के लिए ज्यादा फेमस है, सिविल वाले के लिए उतना फेमस है नहीं। तो एज ए सिविल इंजीनियर अगर मैं भेल ज्वाइन करना चाहता हूँ तो इसका अच्छा आंसर क्या हो सकता है? चलो एक काम करो, यू ट्राई टू कम अप विद अ गुड आंसर। अगर वो अच्छा नहीं है, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। पहले आप ठीक है? आप थोड़ा वर्क तो करिए अपने ऊपर में, थोड़ा वर्क ही वर्क तो करिए फिर। वरना हम्म। अगर देखो मैं आंसर बताऊंगा तो तुम्हारा भी वही होगा, तुम्हारे साथ जो 10 लोग सिविल में जा रहे हैं जिन्होंने मुझे पूछा उनका भी वही आंसर होगा। तो थोड़ा नहीं नहीं खुद सर, ट्राई एक्चुअली करो, करो करो, एक्चुअली ट्राई करो सिविल थोड़ा। के लिए सर इट्स नॉट ठीक दैट है। डिफिकल्ट। मैं तो सिविल से हूँ भी नहीं, मुझे भेल के बारे में पता भी नहीं है, फिर भी मैं आंसर बता पाता हूँ। ठीक है? चलो, यस सर। यू ट्राई इट आउट। ट्राई करो, बाकी फिर अभी देख सर। लेंगे। चलिए। अभी नहीं, ठीक है, टेक योर टाइम, अभी तो नहीं। सर 1 मिनट